Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started then. So what we are saying is that we say that we have an images folder. There we have one second. It's getting writing on my phone. So we say we have an images folder where we have the Ramadan pic and we have the vids where we have the Ramadan vid.mp4. Then we've got the index and style as usual. Usually we create, uh, usually we create the style in a style folder. Okay, keep that theme. Uh, or here this time the style is outside. Okay. Now here we just did what we created the emmet, and using the emmet we created the our wait a second, let me admit the Majid. Okay, and we created using the emmet the boilerplate code. Now today we learn about the video. Okay, before, because this HTML5 has the video tags. Okay, but before HTML5 we didn't have the video tag. So if we didn't have video tag, how people use video in the website was how they, what do you think, how video was used in the website? Because we didn't have the video tag. मगर वीडियो तो चलते थे ना वेबसाइट में फिर भी, बिकॉज वी हैड द प्लगइन्स. हमारे पास प्लगइन्स होते थे, जैसे फ्लैश प्लगइन हमारे पास है. जो फ्लैश होता था वो वीडियो प्ले करता था आपके, यानी कि वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता था जो वीडियो प्ले करता था इन ए वेबसाइट. यानी कि वेबसाइट में वीडियो चलाना है, सो यू हैव टू यूज अ थर्ड पार्टी प्लगइन लाइक फ्लैश. फिर वो प्लगइन कभी क्रैश भी होता था, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, लॉट ऑफ इश्यूज. Ajaz Malik, you have raised the hand. Any question? The help of iframe also. Yes. Okay. But now, because we have now the video tag, so we didn't need any plugins and all that. Okay. So this is the what Ajaz Sahab is also saying. That's again a plugin and all that. We don't need that now, because the video tag is inbuilt now in our HTML5, right? Okay. Now how you do that? Let us do some use case also of the video, and firstly we just see a few things about the video tag. Okay, so if we have a video tag which just say video, vid, and press enter, now we got the source here. The source is where we want to what, we will link our video file on here. So we could go to the some website also and get it from there also. Okay, so if you want to go to the website, for example, always go to the Pexel. We have many, uh, we have many sites where we can get a free videos. You should always remember, in your website you should never use the proprietary stuff, because that can lead you to the copyright claims, and that can lead you to the jail. Because you should always use the proprietary, the free version, because there are a lot of sites for videos and for photos. You can have the Pexels give you free videos here which you can download, and they are copyright free. And also there is this Unsplash. So another site is the unsplash.com. Okay, there's the Unsplash. Like for example, I go to the Unsplash and there are the free pictures. So you have the videos, you want to have the pictures, you can use that, the unsplash.com, or you can use the pexels.com. Never use any copyrighted material in your website, that's important. Okay, so if I go to the Pexels and I chose some picture, for example, here, say this one, I open it, whatever it is, so I can just copy it. Okay, uh, get you can copy the image address here like this, get the copy image address like this. Then you can go in your project and you can put up a source like this. Okay, you can put up a source here. Okay, then if you give it a go, command S, save it, it can come up in your project. Right now it's not coming, I don't know why, I have done something wrong. I have a source, in a source I'm getting the exact address. Let me dispose of.
It's coming on the next page. Okay, you can get this file, I mean that picture here. सर हमें लिंक तो नहीं करना है स्टाइल के हाँ, साथ? yeah. Which one? No, you don't have to link anything because this is the direct file. We are saying the source directly as the whatever the the pixel file is. Okay, but I think the address is wrong here. जो एड्रेस मैंने कॉपी किया दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें बाद में होना चाहिए ना कि इसका जो HTTP इमेज pixel.com फोटोज़ ने अभी तो लग रहा है ठीक है, एड्रेस है आई डोंट नो, इट्स नॉट राइट नाउ कमिंग, वी विल सी इट, लीव इट फॉर अ वाइल. We will use our own image, which is own video, which is in the vids folder. Okay, so I'm saying we have a video tag, and in the source you go to the vids here, which is the vids folder, and then you got the ramadan.mp4. Now I got a video which is on my page, on my folder, which is loaded here. Let me see first this thing. I think we should unport it and go live. It's coming on the other screen. Okay, let me get it here. So it's coming up here, that video. But as you could see, there are no controls on it. I want to play it, I want to pause it, I want to do something, but it's not coming up here, right? Let me close this one. Maximize this and get it here. Okay, now I want this video to play in my browser. It's too big, I can resize it. I want to resize it. So what shall I do to resize it, to make it play? The first thing is I want controls. Okay, so after the source I can say here control. I can say here what? Controls, like this. The moment I say controls, what I will get now is I will get the controls on here, like this play button. As you could see, now it's playing. Okay, I can get the maximize button here, which is putting up the maximized the video. I can have the three dots where I can download this video. I can have the playback speed, which is the faster if you want to, and so slower, which is like YouTube style. And I can also have the picture in picture where it goes down and it puts picture in picture mode. So I can have all that ready-made stuff, everything here, right? Which is by putting the controls. Okay, here. I don't know why Prettier is not working today. It should work. Now, next thing I will do here is after controls, the Prettier should have done it like this, ना? Prettier काम नहीं करा अभी. Prettier आपने किया था डाउनलोड इसमें इंस्टॉल, द प्लगइन, ये एक्सटेंशन है ना Prettier. हेलो. यस सर, हमने किया था वो डाउनलोड. ठीक ठीक ठीक. मेरा Prettier आज काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों. Okay. Now after controls, I want to set some height. Maybe I say height. Say height of 600 pixels. Okay, and maybe also width. I will say width of, say for example, 700 pixels maybe. Okay. Now if I give it a go, now the video player, as you can see, this is the video player which is outside. Okay, video इसकी width खुद की कम है, लेकिन जो वीडियो प्लेयर मेरा है अब देखें इसकी हाइट एंड विड्थ सेट हो गई. अब वीडियो खुद की जो वीडियो था उसका विड्थ बहुत कम है. सो इट्स एक्चुअली मोबाइल वीडियो काइंड ऑफ थिंग. सो इसलिए यहाँ पे बाद में वाइट स्पेस आ गई. अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर आप इसको प्ले कर रहे हैं ना, तो ये जो प्ले हो गया तो जब जाएगा ये एंड पहुँचेगा इसको एंड ये बंद हो जाएगा. मैं चाहता हूँ ये फिर से चले, ये खुद ही चलता जाए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा काम, आई विल हैव व्हाट्स कॉल्ड एन लूप. आई से व्हाट लूप. इफ़ आई से लूप नाउ, जब मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ पे मैं एंड पे पहुँचूँगा, इट विल ऑटोमेटिकली प्ले अगेन. तो इट्स प्लेइंग अगेन एंड अगेन. ओके, दिस इज़ द लूप डूइंग हियर. नाउ नेक्स्ट थिंग आई कैन डू हियर इज़ कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको जब मेरा वीडियो है ना जो प्ले नहीं हो रहा पहले, तो इसको पहले एक पिक्चर आनी चाहिए. तो उसके बाद जब मैं प्ले करूँगा तो वीडियो आना चाहिए. पहले एक उसके ऊपर थंबनेल आना चाहिए, जैसे ना यूट्यूब में आते हैं पहले थंबनेल.
जब आप कोई वीडियो भेजते हो उसकी थंबनेल होती है, वो कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हो उसको, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो का ही इमेज हो, दैट्स कॉल्ड अ थंबनेल। तो थंबनेल लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, दैट्स कॉल्ड पोस्टर, दैट्स कॉल्ड व्हाट। अब पोस्टर में मैं क्या बोलूँगा कि मुझे कौन सी थंबनेल लगानी है, और वो मेरी बैठी है यहाँ पे इमेजेस जो फोल्डर है उसमें जो रमदान पिक है ये चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा जो मेरा इमेजेस फोल्डर है, क्या है, जो मेरा इमेजेस फोल्डर है उसमें मेरे पास रमदान जो पिक है वो मैं एज अ थंबनेल चाहता हूँ लगाना। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पोस्टर। नाउ इफ़ आई गिव इट अ गो, नाउ यू सी कि मेरे पास इस वीडियो की पहले पिक्चर आ रही है, ये मेरा थंबनेल आ गया जो ऊपर से, ठीक। लेकिन अब मैं जब मैं प्ले करूँगा तो अब वीडियो आएगा। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई ये खुद प्ले होना चाहिए, यानी कि जब मैं ये करूँगी, जब मैं वेबसाइट पे जाऊँगा ये खुद प्ले होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्ले होना चाहिए, ये इसको प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो आई कैन से देन हियर व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, ठीक है। नाउ इफ़ आई से ऑटो प्ले, सो एज यू कुड सी इट्स प्लेइंग ऑफ इट्स ओन, मैंने इसको कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आई रिफ्रेश इट, ओके। नाउ यहाँ पे आते हैं, इसको फिर से चलाते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे हम, लेकिन ये चल नहीं रहा ना, ऑटो प्ले होना चाहिए था ना, ये नहीं हुआ क्योंकि गूगल की पॉलिसी है कि अगर आपको ऑटो प्ले करना है देन यू हैव टू कीप इट म्यूटेड, यू हैव टू कीप इट व्हाट, any video which you want to autoplay that should be muted. If it is muted then it can autoplay. Now you can see it is autoplaying, but you have to play autoplay in a muted mode. It's a policy of Google that if you have to play some video in a website autoplay mode में रखना है then उसकी voice on नहीं होनी चाहिए, वो mute form में होना चाहिए, right? ये उनकी policy है. So that is why autoplay is not working unless you don't keep muted. Get you the point? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. Now I want to do some use case of this video tag, which is the pop-up video. मैं क्या करना चाहूँगा, बेसिकली वी विल लर्न लॉट ऑफ टूल्स इन इट, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये स्क्रीन है, यहाँ पे एक पिक्चर आनी चाहिए ऐसे, ओके। इस पिक्चर ये पिक्चर जो है ये मेरा एज अ थंबनेल काम करेगा, मगर ये वीडियो का थंबनेल नहीं होगा बल्कि पिक्चर होगी ऑन टॉप, और एक बटन होगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये बटन जो होगा मेरा, ये क्लिक करने से, इस बटन को क्लिक करने से थोड़ा जावास्क्रिप्ट का हमें टेस्ट भी आ जाएगा इससे, कि इस बटन को क्लिक करने से यहाँ पे वीडियो चलना चाहिए, इस पिक्चर की जगह क्या चलना चाहिए, बीच में सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो हमारा है उसमें वीडियो चलना चाहिए, और फिर जब वीडियो चलेगा यहाँ पे क्रॉस बटन होना चाहिए यहाँ पे ऐसे, और मैं चाहता हूँ कि ये क्रॉस बटन मैं ये आइकन हो, ये आइकन मैं रेडीमेड लाऊं फ्रॉम फॉन्ट एवसम, फ्रॉम फॉन्ट एवसम। तो इससे हम सीखेंगे कि कैसे हम आइकन लाते हैं फॉन्ट एवसम से, और फॉन्ट एवसम से कैसे लिंक हम करते हैं अपने वेब पेज के साथ, जैसे हमने CSS को लिंक करना है इसी तरह से फॉन्ट एवसम को हम लिंक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बटन हमारे पास है, ठीक है, और बटन को क्लिक करने से वीडियो चलना चाहिए, और जब वीडियो चलेगा फिर इसको क्रॉस करने से वीडियो ख़त्म होना चाहिए और थंबनेल आनी चाहिए बीच के बीच। अब बीच के बीच लाने के लिए मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन बाद में हम CS में पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स। हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रिड हमारे पास है जिसमें हम अलाइन करते हैं चीज़ों को, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है दैट्स कॉल्ड फ्लेक्स, ओके, और फ्लेक्स बॉक्स। तो इसका भी टेस्ट करेंगे, हालांकि वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन CSS when we start CSS. We'll read them in detail there, but we have a little taste about the flexbox. We will have the taste about the font awesome. We'll have a little bit of JavaScript on the button, okay, and we'll do little styling and all. We know all this styling तो हम कर ही चुके हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसके ऊपर भी थोड़ा काम करके हम इसको सेंटर में करेंगे एंड ऑल दैट, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो ये यूज़ केस से हम थोड़े से ये टूल्स सीखेंगे। इससे पहले कि हम ये टूल्स सीखें, आई वांट टू गो बैक कि हमको वो पिक्चर क्यों नहीं चली, जो ना अगर हमने क्या किया, अगर हमने पिक्स, अच्छा हाँ, हमें पिक्स पता है हमें क्यों नहीं चली वो, क्योंकि टैग द वीडियो था, मैं डाल रहा था पिक्चर,
मैं इसमें पिक्चर हमने कॉपी किया होता ना पिक्चर, यू गेटिंग, जो अभी हमने Yes, sir. हाँ, हम तो वीडियो टैग में पिक्चर डाल रहे थे ना, इसलिए वो नहीं आ रहा था। अगर हमें पिक्चर लानी है बेसिकली हमें इमेज टैग करना पड़ेगा, जैसे इमेज टैग है। अब इसके सोर्स में जैसे मैं गया था किस साइट पे, पिक्सेल्स। अब पिक्सेल्स में आपको वीडियोस भी मिलेंगे और आपको फ्री पिक्चर्स भी मिलेंगे। जैसे ये मेरे पास है कोई पिक्चर है अंडे वाली, इसको राइट क्लिक करूँगा मैं, कॉपी इमेज। कॉपी इमेज नहीं करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, ठीक है। अब ये मैं डालूंगा ना इसमें इमेज की सोर्स में, मैं ये इमेज डाल रहा था वीडियो की सोर्स में, इसलिए वो नहीं दिखा रहा था। सो नाउ इफ़ आई सी इट हियर, जो मेरा ये तो पिक्सेल्स वाला है ना, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब ये आ गया पिक्चर यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी हाइट वगैरह हम सेट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। जो इसकी हाइट है वगैरह वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो मेरा हाइट है, जो मेरी हाइट है वो आप रख लो फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पिक्सेल्स, और जो विड्थ है वो रख लो आप से फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पिक्सेल्स, ठीक है। सो अब ये छोटी आएगी यहाँ पे, एज यू कुड सी द पिक्चर। हम गलती ये कर रहे थे कि अभी जो पहले हमने किया ना, वो असल में हम वीडियो टैग में पिक्चर डाल रहे थे, दैट वाज द प्रॉब्लम। अभी इसको हम क्लियर करेंगे ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को चालू करेंगे, जो मैं यूज़ केस दिखाने जा रहा था। लेट अस डिलीट दिस। अभी तक क्लियर है ये जो चीज़ें में हम किया, everything clear? Sir. Okay, now let me call this as pop-up video. Let me call it pop up video, this use case of it। और इससे पहले मैं pop-up video करूँ, मैं मेरे CSS जो स्टाइल है उसको लिंक करना चाहिए अपने इसके साथ, तो आई कैन से लिंक कोलन CSS, राइट। एंड स्टाइल डॉट से आज इस बार ये सीधे स्टाइल डॉट CSS है क्योंकि मेरे फोल्डर में नहीं है। लास्ट टाइम आई वाज क्रिएटिंग इन अ फोल्डर स्टाइल और उसके अंदर था, तो मैं यहाँ पे लिखता था style डॉट CSS, ये ठीक है ना। अब ये इसी लेवल पे है तो ये सीधे ही आएगा। ओके, इन द बॉडी टैग, ओके, आई विल हैव वन इमेज फर्स्ट। आई विल हैव व्हाट, बट I will create an image, but first I will create some containers. I will create what? Always we create a containers. We have the container. This is our say web page. We have the first container where I can have the image and etc. Then another container where I will have the videos. I will have image in this container and video in this container. So don't start creating the image and video without containers. So always use containers. Like before we use it div. Now in semantic tags we have the section, we can have the headers, we can have the nav, we can have the main, right? Create these as the containers always. Never put any element directly inside the body tag without a container. This is the policy. Okay, getting? The first in a body, what I will say is I will have a main container. The container name is main, okay, and I name it. I want to name it as a main container. You know, usually in a programming language, we name if I have to name the box, this box, I want to create a box. That's what's called a container. If I name it as a main container, for example, main. So in programming language, we use camel casing. Like we say main, then we say C capital ONTAINER. But in web design, you know, parlance, we maximum create like this, as you could see here, this style. See this style where there is a dash in between. So if I have a 2-letter name, then I will say main dash container like this. So use this style in your web designing. Okay, in your programming languages like C, Java and all, there we don't do like this. We do main, then we use camel casing, container without space here. Okay, the second letter will go capital. The second word, first letter of the second word go capital. But in web design, we use the dashes, this style. Because, sorry, not this style, this one here, this style. Because later we will use the frameworks like Bootstrap and Material UI or something like that. They use this style. So adapt this style from the beginning. Okay? Not the camel casing in the web designing. So here, I will create my first container. Now if I say like, see, if I say dot
and I'm saying main container. Main container. If I do like this, dot main container is a shortcut to create a div with a class name dot main container, because dot means a class. Dot means class. So it will create a div with a class main container. But I don't want to create div. I want to create a main. I want to create what? So I have to say main dot main container. So what I'm writing, what I'm trying to write is, I'm trying to say, dude, give me a container. What I'm trying to say is here, this main is the container, this dot means the class name, and this is the class name. Got it? Now if I give it a go here, for example, I go here and I say enter. Now it will create a main as a tag, जो आपने लेफ्ट में लिखा था, फिर डॉट के बदले इसने क्लास लिखा, और जो लिखा था आपने नाम वो इस डबल कोट्स में इसने डाला. सो नाउ आई गॉट द मेन कंटेनर. डज इट मेक सेंस? Yes, sir. So this is my main container. Okay, in this I will create one image. I will have one image. I say img tag, and in the source I have already the picture in my images folder. So I say images जो folder मेरा है उसमें मेरी जो पिक्चर है जिसका नाम है रमदान पिक, वो रख दो, यानी कि यहाँ पे जो रमदान पिक है. Do not forget the alternate text. Okay, it is Ramadan picture maybe. Okay, this is the alternate text is for the search engine optimization as well as for the screen readers. So you have to do it. This is very important. Okay, I told you na how screen readers read the alternate Yes. text. Yes, sir. So images Ramadan topic. Now this is the image which is coming up. So let me see. Okay, now this is the image which is coming up. It's a huge image. Okay, it's actually a very big image. So let me resize it. Okay, we can size it by the height and width. Maybe I put a width. If I say width, height automatic हो जाएगी. Say for example 600 pixel width करूँगा मैं, तो याद रखना चाहिए height automatic हो जाए. If you select ना width, only width, height automatically selects. Okay, you don't need to. But if you want to, मेरे को इतनी height चाहिए, मेरे को उतनी height चाहिए, you can do that also. लेकिन अगर आप width करोगे तो ये पिक्चर बहुत बड़ी दिख रही थी, इसलिए मैंने इसको साइज अप किया. हालांकि मुझे साइज अप नहीं करना था बेसिकली. तो मैंने पहले काम क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे मैंने एक कंटेनर बनाया जिसका नाम मेन है, उसमें एक इमेज डाली मैंने. ठीक हो गया. अब इसमें मैं इस इमेज का टैग लगाऊंगा कि इमेज है क्या. मे बी आई से इन H1 टैग रमदान करीम. ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा रमदान करीम, ये इसका टैग आ जाएगा. ठीक है, एंड then I will have the details about the picture in the p tag. You say p, enter, then say lorem into 3, ये and enter. ये lorem 3 times करेगा ताकि dummy text हमें डालेगा इसमें. Now I will have a picture with the picture name and then the text about the picture. Okay, this text will be about the picture. Okay, अभी तो गंदा दिख रहा है क्योंकि हमने अभी स्टाइल नहीं किया इसका. देन आई नीड अ बटन. फिलहाल हम बनाएंगे फिर हम स्टाइल करेंगे. ठीक है ना. एक और हमें हमारे पास इस मेन में एक लास्ट में एक बटन चाहिए. हमारे पास क्या चाहिए, बटन. यानी कि यहाँ पे एक बटन होना चाहिए यहाँ पे, जिसको क्लिक करने से फिर वीडियो चलेगा ना, और क्रॉस आना चाहिए फिर वीडियो के साथ. तो अब यहाँ पे पी टैग के नीचे मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ और जिसका क्लास नेम BTN होगा. तो बताओ मुझे कैसे करूँगा मैं. आप मुझे बताएंगे मैं कैसे करूँगा. मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बटन यहाँ पे आना चाहिए जिसको क्लिक करने से फिर वीडियो दिखेगा हमें. तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बटन का नाम जो है ये ऐसे आए. ये जो बटन है इसका ये टैग ऐसे है BUTTON, और इसका क्लास नेम होना चाहिए मुझे BTN फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा मैं इसमें यूजिंग सर हम लिखेंगे सर इसमें बटन डॉट. Very good. Wait, I will write. You are saying we will write button dot मेन. मेन क्यों लिखे. मैं चाहता हूँ इसका क्लास नेम हो BTN. button dot btn. Button dot BTN. btn. Yes. So it will create a button with the class name BTN. लेकिन जो बटन है उसका टेक्स्ट क्या होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे. मे बी आई से शो रमदान. ठीक है. नाउ the button will come up with a show Ramadan on the text on it. ठीक है. और इसके अभी क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा,
विल यूज द जावास्क्रिप्ट टू डू समथिंग ऑन इट. ठीक है, ओके. ओके सर. Yes, sir. अब मेन के बाद मेरे पास एक और एक मैं एक सेक्शन बनाऊंगा. क्या बनाऊंगा? आई विल मेक ए सेक्शन. ओके, और सेक्शन का क्लास होगा मेरा वीडियो कंटेनर. तो कैसे लिखूं शॉर्टकट में? मैं कहूँगा सेक्शन डॉट वीडियो डैश कंटेनर. एंटर. अब इसके में जो सेक्शन एक बन गया जिसका क्लास है वीडियो कंटेनर. ठीक है, अब मेरे पास दो चीज़ें हैं. एक तो ये मेन है, देखिए यहाँ मेन जो मेन मेरे पास है, ये मैं इसको बंद करूँगा. ये मेरा मेन है और ये मेरा दूसरा सेक्शन है. सेक्शन में मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ. इस सेक्शन में क्या डालने जा रहा हूँ मैं? ये जो सेक्शन है इसमें वीडियो डालेगा. इस मेन में मेरे पास पिक्चर था और एक तो पिक्चर इमेज है, ये इमेज आ गई इसमें, और इसका H1 आ गया जो बता रहा है कि क्या है, और एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास. क्या आ गया? यस सर, लॉरेन. और एक बटन आ गया इसमें. ठीक है ना, तो ये सारा मेन के अंदर है. तो मेन में क्या क्या चीज़ें मेरे पास है देखिए. तो मेरा जो पेज है इसमें पहले मैंने मेन कंटेनर बनाया. ये मेन कंटेनर में मेरे पास इमेज है, मेरे H1 टैग है जो बता रहा है रमज़ान करीम, और एक बटन है. ठीक है, अब दूसरा कंटेनर मैं यहाँ से बना रहा हूँ जिसका जो उसकी सेक्शन है. ये सेक्शन है, ये मेन कंटेनर था, ये सेक्शन है. सेक्शन के अंदर मैं एक वीडियो डालने जा रहा हूँ और मुझे इसकी साइड में क्रॉस बटन आना चाहिए ऐसे, जो फॉन्ट ऑप्शन से मैं लाऊंगा. ठीक हो गया? यस सर. ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे, उससे फिर हमें फिर आगे मदद मिलेगी. यूजुअली जो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यूज़ केसेस ही कराता हूँ. ठीक है, मैं यही सेम यूज़ केसेस कराता हूँ अक्सर. तो यूज़ केसेस से हमें चीज़ें समझ आती है. सो क्लास वीडियो कंटेनर मेरे पास है. इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसमें बनाऊँ मैं एक बटन. नो बटन तो बनाया ऊपर मैंने, ये इसमें वीडियो बनेगा ना. वीडियो सर. सो वीडियो टैग मेरे पास है ही है, और सोर्स में मेरे पास विड्स फोल्डर में, ये जो विड्स फोल्डर यहाँ लेफ्ट में है इसमें रमज़ान वीडियो है ना. तो विड्स फोल्डर में मेरे पास रमज़ान ये है, तो ये वीडियो इसमें चलेगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो अब मेरे पास ये वीडियो चल रहा है नीचे. ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी विड्थ वगैरह करूँगा तो क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है. ठीक है, सो इसको हाइट हम देंगे या कुछ देंगे, जैसे लेट मी गिव इट अ हाइट, या विड्थ देंगे हम इसकी 500 पिक्सल. ये वीडियो की मैं विड्थ दे रहा हूँ 500 पिक्सल. ठीक है, ये तो बहुत कम हो गया, इसको क्या मसला हो गया? अच्छा 50 आ गया ये. 50 रखा सर आपने. ठीक है, अब ये वीडियो आ गया यहाँ पे देखें. ठीक है ना, दिस इज़ द वीडियो कमिंग अप. ओके, इसकी हाइट इसकी लंबी है वीडियो की. मैं गलत वीडियो चूज़ किया हुआ है. ये उस ऑलरेडी याद समझना, ये पिछली बार पढ़ाया था मैंने, ये उसी का जो था ऑलरेडी इसमें था. ये हाइट इसको दूंगा मैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी भी हाइट भी 500 पिक्सल दे दो. ठीक है, अब इसकी हाइट एंड विड्थ तकरीबन सेम आ रही है. तो ये नीचे आ रहा है मुझे, लेकिन ये मुझे जब मैं इसको स्टाइल करूँगा लास्ट में, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, ये एक ही सेंटर पे आना चाहिए सारा. ठीक है ना, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ. तो एक ही वीडियो हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि एक क्रॉस बटन आए. क्या आए? क्रॉस बटन. इधर क्रॉस बटन आए, इसको क्रॉस करने से फिर ये वीडियो गायब होना चाहिए और पिक्चर आनी चाहिए. ठीक है, ओवरऑल मेरा सिनेरियो वही है. अब उस क्रॉस बटन को लाने के लिए या तो आपके पास आइकन्स होंगे, जो आपने यहाँ पे आइकन्स फोल्डर रखा होगा उसमें लाएंगे, या हम ऑनलाइन डायरेक्ट ला सकते हैं. तो उसके लिए मैं जाऊँगा ऑन अ फॉन्ट एवसम. आई विल गो टू द फॉन्ट एवसम, FONT फॉन्ट एवसम. फॉन्ट एवसम पे जाएं और यहाँ पे फॉन्ट एवसम जब आपका गूगल में आएगा वहाँ पे आइकन सेलेक्ट करें. ठीक है, या तो आप फॉन्ट एवसम से आइकन्स लाके वो आइकन्स फोल्डर में डालेंगे, या आप डायरेक्ट ला सकते हो वेबसाइट से ही. और यहाँ पे आप सर्च करें टाइम्स. क्या करें सर्च? TIMES टाइम्स. जब आप टाइम्स सर्च करेंगे इन फॉन्ट एवसम तो यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस बटन्स आ रहे हैं, जो भी मर्जी है आपको जो रखना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यही रखूँगा, ये जो सिंपल गोल वाला है. आई विल क्लिक दिस. ठीक है ना,
और यहाँ पे जब ये खुलेगा तो यहाँ पे एक क्लिक मारना है, यहाँ जो आई क्लास है ना, ये आई क्लास एफ ए सॉलिड एफ ए दिस, इस पर क्लिक करना है, खुद कॉपी हो जाएगा। जब ये कॉपी होगा वापस आना है, और ये जो वीडियो मेरे पास है, वीडियो इसके नीचे में डाल रहा हूँ फॉन्ट एवसम का ये, ठीक है। अब ये जो फॉन्ट एवसम है ये डायरेक्ट लाएगा फ्रॉम द वेबसाइट। कहाँ से लाएगा? वेबसाइट। इसलिए हमें फिर लिंक करना पड़ेगा फॉन्ट एवसम अपने इस HTML पेज के साथ। जैसे मैं ये जो है जैसे मैं CSS कर रहा हूँ ना लिंक अपने फाइल के साथ, इसी तरीके से हमें फॉन्ट एवसम का जो है वेबसाइट जो है जहाँ से ये ला रहा है ये, उसको लिंक करना पड़ेगा। और जो ये दिख रहा है ना FA सॉलिड, FA सर्कल, X मार्क, व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी? सर नेम है, ये क्लास है, क्लास, these are different क्लास नेम्स, ठीक है। ये फॉन्ट एवसम ने कहीं पे लिखे होंगे अपने CSS फाइल में, ठीक है। जब मैं लिंक करूँगा फॉन्ट एवसम अपने इस के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, तो फिर ये क्लासेस को वो कॉल करके इस पे वो स्टाइल लगाएगा। ये ना CSS फाइल में स्टाइल अथ क्लास नेमस पे, ठीक है। सो ऐसे फॉन्ट एवसमस में, यानी कि इस अगर मैं अभी देखूंगा अपने इसमें तो मुझे कोई क्रॉस व्रॉस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिंक ही नहीं किया। तो लिंक करने के लिए मैं बोलूँगा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है CDN.js कहूँगा मैं, CDN.js आपको हो, CDN.js लिखो आप यहाँ पे गूगल में, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करो फॉन्ट एवसम, यानी कि फॉन्ट एवसम का मुझको CDN चाहिए, ठीक है। तो जब मैं फॉन्ट एवसम में करूँगा, फॉन्ट एवसम आ गया उसका CDN.js में फॉन्ट एवसम का, और मैं ये सिलेक्ट इसका कॉपी करूँगा एड्रेस ये वाला। इसके बहुत सारे हैं जो CSS फाइल्स इनकी हैं। मेरी ये वाली CSS फाइल जो है ना, ये जो है ना min.css, इसको मैं कॉपी करूँगा। कभी कभार आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इफ़ यू डाउनलोड, फिर आप इसको रख सकते हो यहाँ पे अपने CSS जो आपका होगा ना फोल्डर, उसमें रख सकते हो। फिर आपको उस CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करना है। फिलहाल मैं डायरेक्ट चाहता हूँ कि ये लिंक आए कहाँ से, वेबसाइट से ही आए, मुझे अपने फोल्डर में कुछ नहीं रखना है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं हम, कभी कभार हम ऑनलाइन ही रखते हैं ताकि हमारे स्टोरेज जो है ना वो बच जाए। क्योंकि सारा डाउनलोड करेंगे तो वो अपने फोल्डर में रखना पड़ेगा। अगर आपके पास जगह कम है, आप चाहते हो, तो फिर आप डायरेक्ट भी ला सकते हो वेबसाइट से, वो लिंक होगा खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी किया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर कभी कभार फॉन्ट एवसम की साइट बैठी है तो वो आइकन आपके साइट में भी दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आपने डाउनलोड करके अपने इसमें रखा है प्रोजेक्ट में, फिर फॉन्ट एवसम चाहे चले या नहीं चले, तो आपका प्रोजेक्ट फिर भी चलेगा। अच्छा, ये कॉपी किया मैंने लिंक, और ये मैं डालूंगा कहाँ पे, जहाँ पे जैसे हमने लिंक किया ना स्टाइल, यहाँ पे, और स्टाइल के नीचे मैं फॉन्ट एवसम का CDN पेस्ट करूँगा। ये हो गया फॉन्ट एवसम का CDN। अब जब मैं देखूँगा यहाँ पे पॉपअप वीडियो में, तो मेरे को क्रॉस आ रहा है इधर, ठीक है ना, गेटिंग आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि ये क्रॉस थोड़ा बड़ा हो, मैं चाहता हूँ क्या, ये क्रॉस थोड़ा। तो फॉन्ट एवसम के क्लासेस है बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 क्लासेस के हैं, FA सॉलिड, FA सर्कल, X मार्क। एक और क्लास इसको है जिससे मैं इसको साइज बड़ा कर सकता हूँ, दैट इज FA-2X, FA-। लेकिन ये किसका FA.2X क्लास नेम है? ये फॉन्ट एवसम का है, वो उसकी CSS फाइल में होगा FA.2X। अब आपको वो उसका CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उसके क्लास को कॉल कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपका जो क्रॉस देखो ये बड़ा हो गया, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपको फॉर एग्जांपल कल जाके आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करोगे, वहाँ आप CSS खुद से नहीं लिखोगे, वो CSS ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में लिखा हुआ है। अब बूटस्ट्रैप में फॉर एग्जांपल कोई क्लास नेम है big.big, उसमें CSS में वो सारा चीज़ उसमें लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में इस बिग को कॉल कर रहा हूँ, तो वो सारा जो बिग का चीज़ है वो लागू हो जाएगा हमारे इस एलिमेंट पे, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने स्टाइल में कोई चीज़ लिखा, मैंने बिग लिखा खुद, और उसको स्टाइल किया कि भाई बॉर्डर इतना, ये इतना कलर, ये फॉन्ट, ये वगैरह जो भी, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, या जो क्लास मेरा होगा, जो आई टैग है उसका क्लास लिखूँगा मैं बिग। जैसे मैंने इसका लिखा सेक्शन क्लास लिखा वीडियो कंटेनर, अब मैं वीडियो कंटेनर को पकड़ूंगा इनमें स्टाइल, उसको लिखूँगा मैं .वीडियो कंटेनर, करूँगा स्टाइल, और जब मैंने लिंक किया स्टाइल अपने फाइल के साथ, अब जो भी ये सेक्शन है उस पर वो स्टाइल लागू होगा। लेकिन कल जाके आप रेडीमेड चीज़ करोगे, आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करोगे, मटेरियल UI इस्तेमाल करोगे, या अभी फॉन्ट एवसम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो CSS फाइल है, ठीक है, या तो वो डाउनलोड करके हम रखेंगे इधर
इस फोल्डर में, फिर वो लिंक करेंगे अपने HTML के साथ, ठीक है ना, इस HTML के साथ लिंक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो भी स्टाइल उधर होगा वो लागू होगा, लेकिन हाउ, क्योंकि उस स्टाइल फोल्डर में, उस स्टाइल फाइल में उनके क्लास नेम्स होंगे, उन्हीं क्लास नेम को हमें कॉल करना है। जैसे मैंने अभी एक क्लास नेम को कॉल किया fa2x, इस क्लास नेम ने क्या करके दिया मुझे, इसने मुझे यहाँ पे इसका फॉन्ट जो क्रॉस जो आया था, इसका साइज़ बड़ा करके दिया। ये जो साइज़ आप दिख रहा है नीचे, इसका साइज़ बड़ा हो गया ना। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये fa2x, ये क्लास नेम ऐसे किया होगा कि डॉट fa2x, और उसके ऊपर फिर साइज़ का वो सारा CSS लिखा होगा। लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉन्ट एवसम के .css फाइल में लिखा हुआ है, जो मैंने लिंक किया यहाँ पे, जो आप देखोगे यहाँ पे। एक सेकंड, इसको पहले क्लियर करेंगे। जो मैंने लिंक किया हुआ है यहाँ पे इस CSS फाइल में, जो all.min.css, और वो HTTP इस वेबसाइट के ऊपर है, ये वाली CSS फाइल, इसके साथ मैंने लिंक किया ना अपना प्रोजेक्ट, तो इस फाइल में लिखा हुआ है। इज दैट दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नो सर। ओके, सुनिंदर, नो सर। मुजम्मिल आपको समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। अब आ रही है बारी कि हम इसको स्टाइल करें। अब इसको क्या करें, हम स्टाइल, चीज़ों को हम स्टाइल करें, ठीक है ना। तो वी गो टू द style.css यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं यूजिंग द एस्ट्रिक, मीन्स अप्लाई टू द एवरीथिंग। आई से पैडिंग जो मेरी है, जो मेरी पैडिंग है उसको 0 पिक्सल कर दो, ठीक है। और क्या करते हैं हम, शाबाश, ये थीम रखेंगे ना अब हम, मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग क्या कर देते हैं हम, बॉक्स साइजिंग कैसे करते हैं, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब भूलना नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली मैं कोई कर लो, सैंस सेरिफ कर लो या कुछ कर लो, जैसे मैं सैंस सेरिफ रखूँगा फिलहाल, ठीक है। बाद में हम गूगल फॉन्ट्स एंड ऑल इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब उसके बाद मैं टैग करूँगा HTML को और बॉडी को इकट्ठे, HTML कम बॉडी दोनों को मैं करूँगा। मैं कहूँगा इसमें, मैं कहूँगा डिस्प्ले, जो आपका है डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले पहले जो डिफ़ॉल्ट होता है ना सबका डिस्प्ले, दैट इज ब्लॉक, ओके। लेकिन इसमें एक डिस्प्ले है कंटेंट फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स बॉक्स में प्रॉपरली दिखाऊंगा बाद में, जिससे जो डिस्प्ले हमारा है उस पर पूरा कंट्रोल आएगा हमें ऑन स्क्रीन पे। अगर हमें बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है, यहाँ वहाँ जिधर भी अरेंज करना है, एक फ्लेक्स बॉक्स जो हमारे पास है, या फ्लेक्स हमारे पास है। ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक का मतलब होता है कि जब मैंने कोई एलिमेंट डाला ये पूरी जगह पकड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ जाएगा, ये पूरी जगह पकड़ेगा। तीसरा एलिमेंट यहाँ है तो पूरी जगह पकड़ेगा। फिर अगर हमें इनको यहाँ पे रखना है, ये मैं कहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए या कुछ डिफरेंट जगहों पे आ जाए, तो उस जैसे हमने कहा था पोजीशन में एब्सोल्यूट कहा था मैंने, इसे उठेगा उधर इधर। लेकिन पहले मैं इस जो मेरी स्पेस है इसको कंट्रोल लेने के लिए मेरे पास डिस्प्ले फ्लेक्स एक चीज़ है। वो क्या है, मैं इन डिटेल इसको CSS में पढ़ेंगे यूजिंग द यूज़ केस कि फ्लेक्स कैसे काम करता है। फिलहाल मैंने इसका डिस्प्ले फ्लेक्स रखा ताकि मुझे क्या हो, आपको अभी इतना याद रखना है कि इससे मुझे कंट्रोल आएगा स्क्रीन पे चीज़ें रखने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, मैंने डिस्प्ले क्या रखा। अब मैं फ्लेक्स के एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करके, जो फ्लेक्स है उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि आप सेंटर करना चाहते हो बिटवीन हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ यूजिंग द फ्लेक्स। यानी कि उसके लिए मेरे पास है जस्टिफाई, पहले कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट मैं कहूँगा भाई सेंटर करो यानी कि वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली के लिए कहूँगा मैं अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे सेंटर पे चीज़ें आएंगी। और हाइट में इसकी बॉडी की हाइट मैं रखूँगा फॉर एग्जांपल 100 VH। VH मीन्स जो मेरा व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट मीन्स द स्क्रीन जितना भी मेरा होगा उसकी जो हाइट है उतनी हाइट ऑफ 100 VH, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हम करेंगे, से फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज़ में कहूँगा इसको 20 पिक्सल दे दो फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो मेरे पास है, बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैक कर दूँ सारा, मुझे वाइट नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। तो अब जब मैं जाऊँगा यहाँ पे पॉपअप वीडियो में,
तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया थोड़ा सा, और चीज़ें सेंटर पे आ गई। अब देखो, अब ये सेंटर पे अलाइन हो गई ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे ये वो नहीं दिख रहा ना जो टेक्स्ट है, क्योंकि वो काला था ना, तो उसको हम चेंज करेंगे ना टू द वाइट, फिर वो दिखेगा। हालांकि बाद में मैं करूँगा काम, ये जो वीडियो एंड ये है, ये एक ही जगह प्लेस पे आना चाहिए, ये ऐसे नहीं आना चाहिए। गैस गर्बी गसूँ स्टार्टस वीडियो गैस आत्युन, जब मैं शो रमदान करूँगा तब वीडियो दिखना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम स्टाइल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब मैं पकड़ूंगा पहले जो मेरा इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल में कौन सा कंटेनर मेरा पहला कंटेनर है? दैट इज़ द मेन, है ना, ये वाला कंटेनर। इस मेन कंटेनर में है ना मेरा सारा पिक्चर। इसमें क्या क्या है मेन कंटेनर में? एक तो इमेज है ये, ठीक है ना, एक तो ये इमेज है ना, और क्या है? Yes. और है H1, और है P टैग, है ना। Yes, एक sir. तो P टैग है, H1 है, और है इमेज। 3 चीज़ें हैं मेरे पास। Okay, button. अब मैं इस मेन कंटेनर को पकड़ूंगा। कैसे पकड़ूंगा? CSS में मैं इसको कॉपी करूंगा पहले। यहाँ पे मैं CSS में जाऊंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे? डॉट कमांड वी, क्योंकि ये क्लास नेम था ना मेन कंटेनर, क्या था? मेन Class तो इसलिए मैंने डॉट से पकड़ा इसको। अगर आईडी होता तो हैश से पकड़ता। मैं मेन कंटेनर की जो विड्थ है, जिसमें इमेज मेरे पास है, जो मैक्सिमम विड्थ उसकी है, क्या है? वो रखूँगा मैं फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल। इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए मेरे को, 600 पिक्सल आना चाहिए विड्थ, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे इसमें, तो ये 600 पिक्सल इसने विड्थ पकड़ी कंटेनर ने। अब उसमें ये पिक्चर बैठी हुई है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग दूंगा ताकि ये भागे आपस में। पैडिंग ऑफ सेफ 30 पिक्सल दूंगा मैं, चारों तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग, ताकि जो आपका ये है साइड अभी दिख नहीं रहा हो क्योंकि ब्लैक है सारा। तो इसको जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये पिक्चर विथ 30 पिक्सल जो पैडिंग से आ गई साइड में, ठीक है। ये हो गया मेन कंटेनर। अब मेन कंटेनर में पहली चीज़ कौन है? मेन कंटेनर में कौन सा एलिमेंट है मेरे पास? image. इमेज। अब मैं इमेज को पकड़ूंगा। अब पकड़ूंगा मैं किसको? इमेज में, जो मेन कंटेनर के अंदर इमेज है, ठीक है। उसके ऊपर मैं इसकी विड्थ कहूँगा कि भाई तो इसकी अपनी जो विड्थ है ना, वो तो रख 100% ऑफ द जो पेरेंट कंटेनर है। अब इमेज का कंटेनर कौन है? IMG का कंटेनर कुछ, हाँ जी, IMG का कंटेनर है ना ये मेन कंटेनर, ये है ना बॉक्स। मेन कंटेनर बॉक्स में है ना इमेज। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, sir. इमेज, जो मेरी इमेज है, इसका कंटेनर है ना बॉक्स। अब बॉक्स की हाइट कितनी रखी मैंने? 600 पिक्सल। 600. तो मैं इमेज को कह रहा हूँ 100%, सो इट विल बी 100% ऑफ द बॉक्स, दैट इज, Main container. हाँ। यानी कि अगर मैंने जो ये है क्या बोलते हैं इसको, अगर मैंने विड्थ कम की इस कंटेनर की, अगर मैंने क्या की विड्थ कम, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाऊँगा, मैं इसकी विड्थ कम करूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ से, इफ़ आई थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको, इसका एरो क्यों नहीं आ रहा? ये ना मैं छोटा करना चाह रहा हूँ इसको, हाँ ऐसे। अरे आना, एरो क्यों नहीं आ रहा इसको? आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ कि मैं इस विंडो को ना छोटी करूँ, ठीक है, ये, ठीक है। देखो अब, क्योंकि मेन कंटेनर छोटा हो रहा है ना, Yes, तो sir. पिक्चर ऑटोमेटिकली छोटी हो रही है, ठीक है। अब देखो मेन कंटेनर जब मैं कर रहा हूँ ना विंडो कम, ये थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव बन गया। हालांकि हमें रेस्पॉन्सिवनेस जो लानी है वो हम लाते हैं यूजिंग द मीडिया क्वेरी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रेस्पॉन्सिव भी हो गया ये, क्योंकि देखो पिक्चर स्क्यूज हो रही है ना। Yes, sir. क्यों स्क्यूज हो रही है? क्योंकि मैं पिक्चर को मैंने कहा कि तू उतनी रह, 100% ऑफ तेरी जो विड्थ है ना, वो ये जो तेरी ये है, ठीक है, जो तेरी Yes. विड्थ है वो तू उतनी रखना जितना तेरा मेन कंटेनर है। मेन कंटेनर जब छोटा हो गया, मैंने विंडो छोटी की ना, Yes, sir. तो पिक्चर भी छोटी हो रही है। बात समझ आई? तो जितना मैं मेन कंटेनर कम कर रहा हूँ, पिक्चर भी कम हो रही है। गेटिंग? Yes, sir. सो तो विड्थ मैंने कहा 100% इसको कर दो मेन कंटेनर को,
और इसके मार्जिन्स थोड़े डाल दो ताकि चीज़ें भागें, जो मार्जिन बॉटम है, ताकि उसमें जो मैंने H1 टैग लिखा ना वो थोड़ा सा भागे, 15 पिक्सल। ओके, तो अब ये थोड़ा सा जो रम तो पहले में दिख नहीं रहा ना, वो वाइट है ना, वो वाइट करना है हमें। ठीक है, H1 पहले हम उसको पकड़ेंगे। जो डॉट मेन कंटेनर जो मेरे पास है उसमें जो H1 है, उसमें कौन जो है H1 है, उसका कलर पहले आप वाइट कर दो ताकि वो दिखे। ओके, और उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे हम। फॉन्ट साइज़ वैसे 20 पिक्सल ठीक था, मैं 30 पिक्सल रखता हूँ क्योंकि बॉडी का 30 पिक्सल लिखा ना हमने, बॉडी का यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, तो वो 20 भी ठीक था, मैं 30 कर रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा मोटा दिखे। और फॉन्ट वेट, इसको फॉन्ट वेट करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी मोटाई हो, सिर्फ 500 पिक्सल। ठीक है, अब आ गया रमज़ान करीम यहाँ पे। और इसको जो ये जो बॉटम में इसका बॉटम करो ताकि वो नीचे जाए इसके, ये जो हमने यहाँ पे किया ना इसका ये पिक्सल यहाँ पे, अगर मैं 20 पिक्सल करूँगा इसका तो मार्जिन बॉटम, तो ये थोड़ा नीचे और भागेगा। ठीक है, इस पिक्चर से गेटिंग, समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। अब कौन बचा वहाँ पे? पी टैग। पी टैग। डॉट मेन कंटेनर में जो मेरे पास है पी टैग, पहले उसका हमें कलर वाइट करना चाहिए ना, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था ना। तो इसका कलर वाइट करेंगे तो वो दिख रहा है अब। ठीक है, नाउ इट्स कमिंग अप। ओके, और कुछ करना चाहते हैं इसको? इसका फॉन्ट वेट करेंगे थोड़ा सा, फॉन्ट वेट कर लो 500 पिक्सल इसका भी। ठीक है, फॉन्ट वेट 500 पिक्सल करेंगे। इसको थोड़ा सा हम मार्जिन देंगे ताकि ये थोड़ा आगे पीछे भागे, क्योंकि ये रमज़ान करीम के साथ आ रहा है ना। इट शुड नॉट कम, इट शुड कम लाइक ए पैराग्राफ ना, थोड़ा सा साइड में जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन करूँगा या पैडिंग करूँगा, बताओ? सर मार्जिन। अगर हम मार्जिन करेंगे पहले, देखिए फॉर एग्जाम्पल मार्जिन करेंगे इसको, मार्जिन हम कर सकते हैं। अगर मैं एक लिखूँगा ना यहाँ पे कुछ से फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं दो चीज़ें मार्जिन। अगर मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल ऐसे 20 पिक्सल, दिस इज़ टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट एंड राइट फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो मैंने की, तो इसमें टॉप एंड बॉटम में 20 आ गया, लेफ्ट एंड राइट में 25 आ गया मार्जिन। ठीक है, जो टॉप एंड बॉटम है, तो फर्स्ट एंट्री इज टॉप एंड बॉटम, सेकंड एंट्री इज व्हाट, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट। ठीक हो गया? ओके, ये मैंने मार्जिन कर दिया। लेकिन एक और चीज़ होता है दैट्स कॉल्ड पैडिंग, जो अंदर से दूर भागेगा ये, दैट्स कॉल्ड पैडिंग ऑफ से 20 पिक्सल करूँगा मैं इसको। ठीक है, अब इससे ये अंदर से भागे, यानी कि जो ये पहले तो बाहर मार्जिन तो ये बाहर से भागेगा, पैडिंग से ये अंदर से भागेगा। ठीक हो गया? यस सर। टेक्स्ट वारिया मगर चल आखिर करो, टेक्स्ट कंपाउंड पीटे खोलेंगे हम। लिखेंगे लोरम इंटू 2। हाँ, ओके, तो ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। अब हम इसको बटन को करेंगे पहले, ये टैग थोड़ा सा बटन को हम करेंगे अब स्टाइल। सो उसका नाम क्या था? डॉट बीटीएन है ना, डॉट बीटीएन। बटन को हम पहले बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट, ताकि इसका कलर जो है वाइट बैकग्राउंड है, आ गया वाइट। ओके, इसको जो आप देख रहे हो ना, ये जो शो रमदान है, ये चिपक रहा है ना बिल्कुल बॉर्डर के साथ। बिल्कुल सर। तो इसको थोड़ा सा पैडिंग देंगे, क्योंकि अंदर से जब, हाँ पैडिंग से ही भागेगा। अब पैडिंग जो है मैं दे रहा हूँ, मैं 2 दूंगा, पहले टॉप एंड बॉटम दूंगा, और मैं विड्थ में इंक्रीज़ करूँगा, टॉप एंड बॉटम में कम। ठीक है, 15 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा टॉप एंड बॉटम, और 25 पिक्सल दूंगा मैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा ज़्यादा भागेगा, टॉप एंड बॉटम में कम भागेगा। ठीक है,
गेटिंग? Yes, sir. और इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा मोटा इसको फॉन्ट साइज करेंगे, से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। अब इसका फॉन्ट वेट भी मैं करूँगा, फॉन्ट वेट 500 पिक्सल करेंगे, फ़िलहाल हम कर ही रहे हैं ताकि इसकी थोड़ी सी मोटाई दिखे। और ठीक हो गया? Yes, sir. और बटन के ऊपर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें लगना चाहिए कि ये बटन है। अभी देखो मैं माउस चला रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये पॉइंटर ही आ रहा है ना, ये कर्सर ही आ रहा है जैसे, है ना? Yes, sir. इसमें वो हाथ आना चाहिए, है ना? तो उसके लिए मैं करूँगा, मैं कहूँगा कर्सर जो इसका है, जो कर्सर इसका है वो पॉइंटर कर दो। कर्सर क्या कर दो? पॉइंटर। नाउ Pointer. नाउ व्हेन आई गो देयर, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। जो इसका कर्सर है वो पॉइंटर मैंने कर दिया। एक मिनट, कर्सर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? कर्सर पॉइंटर ही आता है ना वैसे? यस सर, मुझे आया। मुझे तो नहीं आ रहा है। कर्सर पॉइंटर आना चाहिए ना, यहाँ आ ही नहीं रहा। आपको आया है इसमें? यस सर। तो मुझे क्यों नहीं आ रहा? कर्सर ना पॉइंटर आसम से आती। यस सर। अच्छा मैं कहता हूँ गड़बड़ आज ले रहा कहता हूँ, ये आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों, अभी देखेंगे एक मिनट। मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया? ऊपर से कुछ फॉन्ट वेट 500 पिक्सल मैंने कर दिया, फॉन्ट वेट काटेंगे, एक मिनट। मुझे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं क्यों। आपको आया बाकियों को? Yes, sir. पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा, तो लेकिन ये आएगा, कुछ इशू है, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। तो एक और चीज़ है कि जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूँगा, इसका कलर चेंज होना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर कलर हॉवर करूँगा बटन के ऊपर, तो ये कलर चेंज बाद में हम दिखाएंगे कैसे पॉपअप करेंगे। इसकी बहुत सारी एनिमेशन हमें दिखाऊंगा कि बटन को कैसे एनिमेट हम करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत दिखे। फिर तो फिलहाल मैं सिर्फ सिंपल करना चाहता हूँ कि कलर विल गो चेंज, ठीक? तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जो ये .btn है उसके हॉवर पे, उसके हॉवर, जब इसके ऊपर कर्सर जाएगा उस वक्त आप क्या करना काम, जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ग्रीन कर दो। क्या कर दो? ग्रीन या ग्रीन येलो कर दो फॉर एग्जाम्पल। यानी कि जब मैं इधर जाऊंगा अभी ग्रीन येलो दिख रहा है, देखो जब मैं हावर कर रहा हूँ इट इज गोइंग व्हाट, ग्रीन येलो। कैन यू सी? थोड़ा Yes, सा sir. इसमें एनिमेशन आ गई थोड़ी हल्की, हालांकि ये कुछ खास नहीं है, बाद में मैं दिखाऊंगा ज़बरदस्त कैसे बनाएंगे हम एनिमेटेड बटन्स। और बाद में जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे तो उस वक्त हमें फिर या फिर रिएक्ट के ऊपर जाएंगे तो उधर कुछ ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है? हाँ जी, ठीक हो गया? Yes, sir. ओके। अब हमें चीज़ों को सेंटर में लाना है। क्रॉस बटन भी आ गया, लेकिन उसके क्रॉस बटन जो है हमारे पास वो ब्लैक है, वो दिख नहीं रहा अभी। तो उसको क्लिक करने से फिर वो चीज़ें होनी चाहिए और ये सेंटर में आना चाहिए, ठीक है? वो चीज़ें चलेंगी कल, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। फिलहाल वही सब तो फियास वह शेंग नहीं किया, वह कर क्या बदल क्या काम है, हाँ? गए कॉलेज वॉलेज मिस ऑफिस क्या शुगर साथ आप जा रहे हो वहाँ ऑफिस? सर पगह थो छुट्टी, पगह शाम सर आज।